Good morning, student. Our today topic is the 3 and 4 level pumping scheme. तो 3 level and 4 level pumping scheme है. तो हमारे पास क्या है कि there are the many mechanism that can be used for the invert and the normal population density of the energy levels. This process, population inversion, is called pumping. And let us discuss widely the pumping scheme, namely first is the 3 level scheme and second one is the 4 level pumping scheme. Now one by one can be discussed. Now the firstly is 3 level pumping scheme. तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि फिगर में बताया गया है कि 3 लेवल पंपिंग स्कीम E1 दैट इज रिप्रेजेंट E1 is represent the ground state and E2 is the metastable state and the E3 is the excited state. The transition between E1 and E2 and E3 and are allowed when the atoms of the substance are irradiated with the excited radiation of the frequency. तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम लेवल 3 और 1 की बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 माइनस E1/h. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किन 2 लेवल एनर्जी लेवल्स में है, E3 और E1 के अंदर. Now the atoms are excited to the E3 by the process of the stimulated emission and the excited atom in the state E3 have the short lifetime. तो हमारे पास जो short lifetime कितना है, 10⁻⁸ सेकेंड, and they decay the spontaneously to metastable state E2 by the spontaneous emission. In the metastable state E2 the atoms have the comparatively longer time. Longer time कितना है, 10⁻³ सेकेंड, and this lead to the situation that start E2 has a more atom state and E1 and it means the population inversion has been achieved. If now the input signal frequency is, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी किस एनर्जी लेवल में, E2 में और E1 में, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, E2 माइनस E1/h. Now it is introduced, it stimulate to the emission from the E2 to E1 where the introduce one photon and we will have to two, not have to two, and these have can trigger atoms to radiate and this process builds up a give the intense coherent beam. हमारे पास कैसा है, coherent beam, and the above scheme is internal terms as a 3 levels pumping scheme. Now next is the 4 level pumping scheme. 4 level pumping scheme में तो हम इसमें भी क्या है, फिगर हमने बनाई हुई है. तो इस फिगर में भी हमारे पास क्या है, जैसे 4 लेवल पंपिंग स्कीम है तो इट मीन्स हमारे पास क्या होंगे, 4 एनर्जी लेवल्स हैं, E1 E2 E3 E4. नाउ द फिगर कैन बी एक्सप्लेन वन बाई वन. तो नाउ द हैविंग द 4 लेवल scheme, E1 represent the ground state, E2 and E3 are the metastable state and the upper lacing level respectively, E4 and the excited state. जो हमारे पास E4 है excited state, the transition E1 and the E4 and E3 are allowed. जो हमारी ट्रांजिशन है वो किसके बीच में, E1 और E4 में और 4 और E3 में. तो when the atoms are substance are irradiated when the एक्साइटेड रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो रेडिएटेड क्या है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू इजिकल टू, यानी कि एक्साइटेड 4 और 1 में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, E4 माइनस E1 अपॉन में H क्रॉस, ये हमारे पास क्या होगी फ्रीक्वेंसी. तो इट मीन्स क्या है, द एटम्स आर एक्साइटेड टू द स्टेट E4 बाय द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड द एक्साइटेड एटम्स इन द स्टेट हैव द शॉर्ट लाइफ. तो शॉर्ट लाइफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ सेकेंड. तो ये हमारे पास कैसा होगा, दे कैन डिकेट द स्पॉन्टेनियसली टू द मेटास्टेबल स्टेट E3 बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन. नाउ फ्रॉम द लेवल E3 to E2 spontaneous emission cannot take because of
द ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड द सिलेक्शन रूल। ये हमारे पास क्या है, सिलेक्शन रूल। तो पॉपुलेशन ऑफ लेवल E3 ग्रोज रैपिडली सिंस द एट द नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो E2 इज ग्रेटर देन E1, सो एटम्स कैन नॉट जम्प फ्रॉम E1 to E2 ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, सो द level E2 is virtually empty. So the population inversion level E3 and E2 is attained. तो if now the input signal of frequency, तो हमारे पास E3 एनर्जी लेवल E3 और E2 में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, E3 minus E2 by H. That can be introduced. It will stimulate the emission from the state E2 to E1. So it means where we introduce the one photon and we will have two, and these two can be trigger other atoms to radiate, and this process build up to give a instant coherence beam, and the subsequently the atoms from the level undergo a radiated transition to level E1 and they will again ready for the excitation. तो ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो इसी में यही दिखाया गया है कि हमारे पास एनर्जी E1, E2, E3, 4। तो हमारे पास जो E1 है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से हमारे पास एक्साइट होकर वो अपर स्टेट में जाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू वो E3 और E2 एनर्जी लेवल्स में आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो E2 है और E3 के बीच का जो लेवल है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, मेटास्टेबल स्टेट, और उसके बाद अगेन क्या है वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 4 एनर्जी लेवल स्कीम है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर में कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द 4 लेवल पंपिंग स्कीम ओवर द 3 लेवल पंपिंग स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 3 लेवल एंड 4 लेवल पंपिंग। तो हमारे पास फर्स्ट इसमें ऑप्शन क्या है कि फॉर अचीविंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन in 3 level pumping scheme more than the half of the ground level atoms have to pumped to the metastable state, and the number of atoms in the ground state are very large, so high pump power is required. Whereas in 4 एनर्जी लेवल में हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 लेवल पंपिंग स्कीम द ट्रांजिशन टेक प्लेस virtually empty level to E2. So small number of atoms are required in a level E3 and hence small pumping power is required. Now second हमारे पास क्या है कि in the 3 level scheme तो हमारे पास क्या है, stimulated starts the population inversion can revert to normal population condition and it start and when the population inverges re-stabilize, यानी कि दोबारा से हम उसको स्टेबलाइज करेंगे। सो द आउटपुट सिग्नल इज पल्स आउट, जो हमारे पास जो आउटपुट है लाइट की वो कैसी होगी, पल्स आउट। वेयर एज इन 4 लेवल स्कीम द पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन withheld with interpretation and output light is continuous। ये इसमें हमारे पास 2 डिफरेंस हैं, एडवांटेजेस हैं 4 लेवल पंपिंग स्कीम की, किसके ऊपर, 3 लेवल पंपिंग स्कीम की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमारे पास हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लेज़र पंपिंग है उनकी हेल्प हमारी लेज़र एक्शन में यूज़ होगी। आगे हम उसमें हीलियम लेज़र है, रूबी लेज़र है, हम डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स भी पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।